15th chapter now. We finished our 14th, which is, what was the 14th chapter name? प्रकृति के तीन गुण. Wonderful, wonderful. So we are starting the 15th one. This is one of the most important chapter in Bhagavad Gita, right? Which is called Purushottam Yoga, the yoga of the Supreme Person, right? So we'll try to cover from slok number 1 to 5 today. It gives a very good perspective of how we look at the things. Basically, it's very beautifully decoded by Krishna. So it's going to be fun. Okay, so we'll start with Mangalachara. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Satam Sajivam Sadhvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahabadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tuse Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jeevitapatihi Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Sutta Shriman Sachinandana Purvaja Bhaunmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevara He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणीम् राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू खुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे everyone together 2 times हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 one more time हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम राम
Ram 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 Hare Hare Hare. Hare. Wonderful. So before we start our 15th chapter, is anyone would like to summarize or give us the glimpse what they remember from 14th chapter? कुछ याद है आपको 14th chapter में से, if you want to share, which we can revive our connection back to Bhagavad Gita, because we missed our class from last 2 times, right, back to back. So अगर कुछ भी याद है आप बताओ तो बहुत मजा आएगा 14th chapter में से. Yes, it doesn't need to be from this class. You are attending so many classes, so you can share something from the other classes also. ओके प्रभु जी बताऊं लास्ट चैप्टर का? Yes, Hiren Prabhu. या प्रभु जी हमने एक्चुअली लास्ट चैप्टर में 14 चैप्टर देखा था. उसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में आपने बताया था. उसमें 3 गुणों में बेसिकली आता है तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण. फिर आपने बताया था कि तमोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है और सत्वगुण में क्या होता है. बेसिकली तमोगुण में बेसिकली पीपल बिकम लाइक एनिमल, लाइक दे वोंट डू मच थिंग. इन रजोगुण दे डू सो मेनी एक्टिविटी फॉर सोसाइटी बेसिकली. एंड सत्वगुण वो मोरलेस लाइक सन जैसा जीवन जीते हैं. पर आपने उसमें एक मेन श्लोक बोला था कि, और मेन उसमें श्लोक था कि अगर आपको तीनों गुणों से ऊपर जाना है, सुसत्व में जाना है, तो आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी. तो उसमें नटसेल था कि अल्टीमेटली अगर हमें ये तीनों गुणों से पार होना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स रजोगुण भी डोमिनेटिंग, समटाइम्स तमोगुण भी डोमिनेटिंग, समटाइम्स सत्वगुण भी डोमिनेटिंग. सो अगर हमें तीनों गुणों से बाहर जाना है तो वी नीड टू डू भगवान की भक्ति करनी है. Yes, Prabhu, wonderful. So you summarize everything. So till I'll tell you where exactly we stopped. So before, so we couldn't record last session, but I will share the recording, like a solo recording for that 14th chapter from text number 21 to 27 later on. Sorry, I missed it. So basically till text number 20 भगवान हमें अलग अलग गुण के कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं और कैसे हम जूझते हैं उसके साथ, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, एवरीथिंग कृष्णा एक्सप्लेन टू अस. अर्जुन सब समझ लेते हैं, गुण क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनके बीच में स्पर्धा लगी रहती है. और भगवान कहते हैं कि सिंस दे आर कॉम्पिटिंग विच ईच अदर, जैसे हमारे में कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो तमो और सतो को दबा देता है, कभी सतो बढ़ जाता है तो रजो और तमो को दबा देता है, एटसेट्रा. सो भगवान कहते हैं कि ये गुणों के बीचों में जो है स्पर्धा लगी रहती है, बेस्ड ऑन आवर एसोसिएशन, बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग, बेस्ड ऑन व्हाट वी ईट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो भगवान कहते हैं कि अगर इन स्पर्धा से ऊपर उठना है, अगर आपको निरंतर चीर शांति और चीर पद चाहिए, तो आपको शुद्ध सत्व के अंदर एंटर होना पड़ेगा, जिसे भगवान ने वासुदेव स्टेट कहा है, राइट, द स्टेट विच इज कॉल्ड द वासुदेव स्टेट. अर्थात जो मति भगवान की है उस स्तर के अंदर हमें एंटर होना चाहिए, क्योंकि भगवान इज बियॉन्ड दिस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. वो सत्व के भी ऊपर है, वो शुद्ध सत्व के अंदर है. तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सो सतो में रहना भी इज नॉट द एम, इट शुडंट बी द एम. आपको सतो के ऊपर उठ के वासुदेव स्टेट के अंदर एंटर होना है. देन यू विल गेट द प्रकृति ऑफ माइंड विच इज सच्चिदानंद. तो अर्जुन टेक्निकली हमारे लिए ये क्वेश्चन करते हैं इन श्लोक नंबर 21 कि प्रभु मैंने समझ लिया क्या है क्या नहीं है, राइट, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे कि जिस इंसान के पास ये शुद्ध सत्व होता है, या जो इस वासुदेव स्टेट के अंदर रहता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो किसके द्वारा जाना जाता है, वो कैसा आचरण करता है, राइट. सो 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट ही आस्क व्हाट इज दैट, कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं विच इज इन द शुद्ध सत्व. और दूसरा, शुद्ध सत्व के एक तो आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, बट वो आपके अंदर है. लेकिन अगर बाहर के किसी व्यक्ति को जानना है कि आप शुद्ध सत्व के अंदर हो, तो अर्जुन कहते हैं कि उसका आचरण कैसा होता है जो शुद्ध सत्व के अंदर होता है. ये 2 क्वेश्चन पूछे. और तीसरा बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन जो व्यासाचार्य प्रभु ने इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास पूछा था कि प्रभु हम इस प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर उठ के शुद्ध सत्व के अंदर कैसे दाखिल हो पाए, सत्व के ऊपर. सो दिस 3 क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड, राइट, व्हिच गिव्स द
समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर, और भगवान इस तीनों का फिर आंसर देते हैं, विच इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आई एम गोना शेयर होपफुली इन दिस वीक, विच इज फ्रॉम 21 to 27। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इसके अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए, कैसे उसको पाया जाए, राइट। तो भगवान उसको 26 के अंदर कहते हैं कि माचे यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान स्मति त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि अर्थात जो समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है। दिस इज व्हाट भगवान सेज कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति के अंदर आप बिना डगे हुए, राइट, आप पूर्ण भक्ति में अगर प्रवृत्त होते हो तो आप तीनों गुणों से लांघ सकते हो, राइट। तो ये है अर्जुन के तीसरे श्लोक का आंसर। भगवान कहते हैं कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, तो वो क्या है, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होना, राइट। So that was chapter number 14. Now we are starting our text number 1 to 5 of chapter number 15. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मदशाखं श्वत्थं प्राहुर अव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। पहले हम समझते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। देखिए प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति योगा, वन में क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि भगवान आपने भक्ति योग को तो गीता में डिस्कस किया, बट वेदा, व्हाट अबाउट द वेदास, वेदा का पोजीशन क्या है, राइट। सो वो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वेदा, व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ द वेदा, और वेदा का वेदों को कैसे हमें समझना चाहिए, राइट। Therefore one in Krishna consciousness who engage in the devotional service already knows the Veda। ये 15 चैप्टर समझने के बाद आपको समझ जाएगा कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो बेसिकली आपने वेदों को हजम कर लिया है, वेदों को पचा लिया है, राइट। दिस इज द एंटायर चैप्टर अबाउट, राइट। द एंटेंगलमेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर हियर विद द बनियान ट्री। यहाँ पे भगवान इस before explaining the Vedas, what you can get out of the Vedas, what is the position of the Vedas, उसको समझाने से पहले भगवान इस संसार या इस सृष्टि को समझा रहे हैं, राइट। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको मैनुअल देता हूँ किस चीज़ के बारे में, गाड़ी को बनाने के लिए, राइट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि भैया तुम गाड़ी बनाना चाहते हो लेकिन गाड़ी असल में क्या है, तो गाड़ी 4 पहियों पे आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसके अंदर ड्राइवर होता है, इंजन होता है, एंड दिस इज हाउ यू एक्सेलरेट एंड एवरीथिंग। सो फिर आप उसको समझ पाओगे कि उसे कैसे बनाना है या कैसे उसको नेविगेट करना है। वैसे ही भगवान वेदा को समझाने से पहले इस संसार को समझा रहे हैं ताकि आपको वेदा और संसार का जो को रिलेशन है वो अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं संसार कैसा है, तो संसार को भगवान ने एक जटिल वटवृक्ष से कंपेयर किया हुआ है कि जिसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है। इट इज इन द नेक्स्ट दिस वन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पिक्चर। सो जिसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर की ओर है, राइट, और जिसकी टहनियाँ और जो लीफ है वो नीचे की ओर है। तो भगवान इसको आगे के श्लोक में कैसे समझाएंगे, विल अंडरस्टैंड हियर ओनली। जड़ें अर्थात द रूट, रूट जहाँ से ट्री बनता है तो वो उल्टा है। कैसे उल्टा है, क्योंकि इसका जो सर्जनकार है, जो इस संसार का, वो कौन है, लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा का जो लोक है वो कहाँ पे है, सत्य लोक। ये सभी 13 भुवन से जो ऊपर टॉप मोस्ट प्लैनेट जो है, विच इज द टॉप मोस्ट इन द ऑप्युलेंस, वहां पे हाईली स्किल्ड पर्सनालिटीज लाइक लॉर्ड ब्रह्मा लिव्स, राइट।
तो वो बहुत ही हाई फाई काइंड ऑफ लोक है, लेकिन वहां से सृष्टि का सर्जन होता है। तो दैट इज द रूट। और फिर बाकी के लोग जो है वो नीचे बनते जाते हैं। तो बेसिकली दैट इज द रूट। और नीचे फिर उसका थड़, फिर उसकी टहनियाँ, फिर उसकी, सो इट इज अ उल्टा काइंड ऑफ ट्री, जिसकी जड़ें कहाँ पे है? ब्रह्मलोक के अंदर है। फिर आगे भगवान जो श्लोक में क्या समझाएंगे कि उसमें जो ब्रांचेस है, branches are basically different kind of your destination based on your karma, जिसके ऊपर जो ट्वीक्स है, अर्थात उसको क्या बोलते हैं उसमें, आई फॉरगॉट ट्वीक्स, राइट। सो छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है, बेसिकली दोज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इट अट्रैक्ट्स द सोल फ्रॉम वन bunch to another bunch or one tusk to another tusk. तो you imagine like this, जो 14 planetary system है उसमें the topmost 14th is basically a ब्रह्मलोक which is the root, जिसके अंदर से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है वहां से। तो उसको भगवान ने रूट कहा है। फिर ब्रह्म ने बाकी सृष्टि का विस्तार किया, तो वो नीचे ट्री ऐसे फैल रही है जिसकी अलग अलग शाखाएं, जिसके अलग अलग लोक हैं। उस लोक में भी अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग लोकेशंस है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के ट्रंक्स और लीफ है। तो जैसे जैसे जीव किसी की कामना करता है, किसी ट्वीक को देखता है, अच्छा मैं इस ट्वीक के ऊपर हूँ या इस लीफ के ऊपर हूँ, मुझे लगा नहीं वो पड़ोसी का जो कनाडा वाला ट्वीक है वो बहुत अच्छा है, या स्वर्गलोक वाला जो ट्वीक है वो बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ? वेदों को एक्सेस करता हूँ, वेदों के जो सॉल्यूशंस है उसको फॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से यज्ञ, आराधना और अनुष्ठान करता हूँ, फिर उस फ्रूट की प्राप्ति करता हूँ। और बेसिकली मैं दूसरे लोक में जाने का अपना जो है वीज़ा लगवा लेता हूँ। फिर अगला जन्म होता है, फिर मैं उस लोक में जन्म लेता हूँ, वहां पे सुख भोगता हूँ। फिर वहां से वापस से मुझे डिजायर हुआ, नहीं नहीं यार इससे अच्छा तो वहां पे है, तो दूसरी डहनियों पे वापस से जंप करने का प्रिपरेशन करता हूँ, टेकिंग हेल्प ऑफ अगेन द वेदास, right? So Vedas is basically a law book or a guidebook to jumping from one tusk to another tusk, but into the same tree, right? या one body to another body। कभी कभी कोई कहता है मुझे इसका बॉडी अच्छा लगता है, मुझे स्त्री का शरीर अच्छा लगता है, मुझे पुरुष का शरीर अच्छा लगता है, राइट। मुझे देवताओं का शरीर अच्छा लगता है, कोई ऐसे कार्य करता है जिससे उसे एनिमल का शरीर प्राप्त हो। सो इट इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ द सेम ट्री। वही भगवान आगे समझाएंगे। अगेन इसको समझते हैं भगवान क्या कह रहे हैं वापस से 15.1 में, कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वस्थ ट्री वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है, राइट। प्रभुपाद कहते हैं द एंटेंगलमेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर हियर टू द बनियान ट्री एज वी डिस्कस। फॉर वन हु इज एंगेज इन द फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो कर्मकांड में अपने आप को उलझा के रखता है, देर इज नो एंड टू द बनियान ट्री, क्योंकि वो कर्मकांड करके फ्रूट प्राप्त करता है, उस फ्रूट के जरिए वो किसी और टहनी पे जाता है, एक लोक से दूसरे लोक, एक शरीर से दूसरा शरीर। तो उसके लिए इस बनियान ट्री का कोई अंत नहीं है। ही वंडर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, राइट, टू अनदर। द ट्री ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज नो एंड। इन्यूमरेबल बॉडीज है, इन्यूमरेबल प्लैनेट्स है इन दिस यूनिवर्स। भगवान गीता में कहते हैं ना कि अगर तुम अभी तक थके नहीं हो भोग भोगने से, तो टेंशन ना लो, मैं तुम्हें इतने शरीर प्रदान करूंगा जितनी समुद्र में लहरें हैं। अब समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं? असंख्य अगणित लहरें उठती हैं। तो इतने शरीर और इतनी लोक है मेरे पास, इतने ऑप्शंस है। तो जब तक तुम्हें भोगना है तुम भोगो, मैं एक के बाद एक शरीर तुम्हें प्रदान करते जाऊंगा। इसका यही मतलब है कि इस बनियान ट्री का कोई अंत नहीं है, राइट, जो कर्मकांड के अंदर उलझा हुआ है। The tree of this material has no end, and for one who is attached to this tree, there is no possibility of liberation. अगर आप ट्री से अटैच्ड हो, इसके भोगों से अटैच्ड हो, तो आपके लिए लिबरेशन पॉसिबल नहीं है। The Vedic hymns meant for elevating oneself are called the leaves of the trees. जैसे हमने कहा कि जो वेदों के जो ऋचाएं हैं वो बेसिकली क्या है? It is going to be used for elevating oneself from one leaf to another leaf, or one tusk to another tusk. The tree's root grow upward because they begin from where the Brahma is located. हमने यही कहा ना कि ट्री उल्टा है, जिसके रूट्स ऊपर है, वो कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पे ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मलोक से, राइट। इफ वन कैन अंडरस्टैंड दिस
indestructible tree of illusion, then one can get out of it. आपको किसी चीज से निकलने से पहले उसको समझना पड़ेगा कि उसके द्वार कितने हैं, उसके प्रो क्या है, उसके कॉन्स क्या है, मैं क्या करूं तो उससे निकलूं, लेकिन उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैं किस सिचुएशन में हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इसको एक बार समझ लेगा वही इससे निकल पाएगा, क्योंकि जो समझेगा नहीं वो एक भोग या एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने जाने की तैयारी करता रहेगा। लेकिन एक बार जो समझ लेगा कि भैया इसका अंत नहीं है, तब वो यहाँ से निकलने का प्रयत्न शुरू करेगा। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम दिस ट्री। ओके, सो दैट इज 15.1। 15.2 अतश्च चोरत्वं प्रसूतात तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलस्य नुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। भगवान कह रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बांधती है। The description of this banyan tree is further explained here. भगवान ने इसको आगे और एक्सप्लेन किया है। जिसकी ब्रांचेज जो है वो स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस, वो हर जगह इसकी ब्रांच फैली हुई है। इन द लोअर पार्ट देर आर वेरीग्रेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। लोअर पार्ट में भी इसकी शाखाएं हैं, अपर पार्ट में भी इसकी शाखाएं हैं, और मध्य पार्ट में भी इसकी शाखाएं हैं। भगवान कह रहे हैं कि इसका पोषण कौन करता है? प्रकृति के तीन गुण। ये जितने भी लोग हैं, दिस इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द वॉट एवर द गुण ऑफ दिस प्रकृति। और हम जिस गुण को पोषित करते हैं या जिस गुण को धारण करते हैं, उस हिसाब से हम उस लोक के अंदर नेविगेट करते हैं। दिस इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट? दीज आर द सिचुएशन ऑन द लोअर पार्ट। ओके, the demigods, Gandharva, and the many other higher species of the life, they live in the upper part of the trees. The humans and other animals, they live on the middle part of the trees. And the species on the degraded planets, which is called the पाताल लोका, जो नीचे के 7 लोग हैं, उसमें भी बहुत प्रकार के जीव हैं। They live in the lower part of the trees. But ये तीनों किससे पोषित है? Again, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, right? Sometimes we find that a tract of the land is barren for want of sufficient water, and sometimes a tract is very green. Similarly, where particular modes of material nature are proportionally greater in the quantity, the different species of the life are manifested accordingly. The twigs of the trees are considered to be the sense object. By developing of the different modes of nature, we develop different senses, and by senses we all, it's the same thing what we discussed. So basically 3 गुणों के हिसाब से इस ट्री का विभाजन किया गया है। वही 3 गुण इस ट्री को पोषित करते हैं, और बेस्ड ऑन व्हाट गुणा वी कैरी, वी नेविगेट टू दैट पोर्शन ऑफ द ट्री. But technically we are jumping from one guna to another, one portion of the tree to another portion of the tree, or one loka of the tree to another loka of the tree, or one body of that mode to the another body of that mode, right? That is 15.2. 15.3 and 4. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च संप्रतिष्ठा अश्वस्थमेनं सुविरूढ़मूल मसक शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिभार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवृतन्ति भूयः तमेव चाघं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ पे है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। भगवान समराइज कर रहे हैं इन 2 श्लोकों में
कि देखिए ये जो ट्री है उसका अंत कहाँ पे है, उसका मूल कहाँ पे है, वो कितना जटिल है, वो आपकी कैपेसिटी के बाहर है टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि अब सिंपल सी बात है, भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया, ये उसकी सृष्टि है और हम उसके माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल है, राइट। सो टू अंडरस्टैंड दिस वृक्ष वो कितना बड़ा है, वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, भगवान कह रहे हैं। तो आप उसके अंदर उलझिए मत, वरना आपका जीवन कम पड़ जाएगा इस ट्री को समझने के लिए। इट इज वेरी जटिल, वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन भगवान कह रहे हैं मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य को इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटना है। विरक्ति अर्थात डिटैचमेंट। आपको समझना है पहले कि मैं जो कुछ कर रहा हूं या यहाँ पे फंसा हूं बिकॉज ऑफ माई डिजायर। मैं डिजायर कर रहा हूं एक के बाद एक के बाद एक, जिसकी वजह से मैं इस ट्री के अंदर जकड़ा हुआ हूं। तो पहला एंड फॉरमोस्ट जो वेपन व्हाट यू शुड यूज इज विरक्ति, राइट। विरक्ति के शस्त्र को धारण करना है और उससे इस ट्री को काटना है बेसिकली, राइट। उसको काटो ताकि फर्स्ट थिंग इज यू गेट फ्री ऑफ योर डिजायर। जब तक आप डिजायर से जकड़े हुए हो यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड और यू कैन नॉट मूव अपवर्ड और यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस ट्री। सो फर्स्ट थिंग इज सिंस यू आर टाइड अप विद अ डिजायर, डिटैचमेंट के शस्त्र से अपने आप को इस ट्री से डिटैच कीजिए, अलग कीजिए। दूसरा चीज भगवान क्या कह रहे हैं, आपको ऐसे जगह की खोज करनी है जहां से वापस लौटना ना पड़े, राइट। कि एक बार वहां पे चले गए कि आपको इस ट्री के बंधन में वापस नहीं गिरना पड़े। इसीलिए देखिए ये सब वेद है, वेद की ऋचाएं जो हैं, वेद के जो अनुष्ठान है, जो कर्मकांड है, वो आपको हायर प्लानेटरी सिस्टम में ले जाने के लिए कार्यरत है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो जो है वो हायर प्लानेटरी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस वृक्ष ओनली। तो यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ वेस्टिंग योर एफर्ट, राइट। इसीलिए सिंपल तरीका क्या है कि ऐसी जगह पे जाओ कि आपको वापस से इस संसार में लौट के ना आना पड़े, इस ट्री के चंगुल में वापस से ना फंसना पड़े। और भगवान गीता में यही श्लोक कहे है, राइट। यंति देवान प्रति देवान पित्रयंति पित्रवत भूतानाम यंति भूतेया यंति मद यजनोपि मम, राइट। कि देवताओं की पूजा करोगे वहां जाओगे, भूतों की पूजा करोगे उनके पास जन्म लोगे, राइट। पितरों से बहुत ज्यादा अटैच रहोगे तो जहाँ पे पितृ है वहां पे जाओगे, राइट। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करोगे, मेरे साथ रहोगे तो मैं जहाँ पे हूँ वहां पे आओगे। और बेनिफिट क्या है मेरे पास आने का या मेरे लोक में आने का, राइट। कि वहां से आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, वहां पे जाने के बाद आपका नाश नहीं होगा, राइट। सो भगवान कह रहे हैं कि वहां से लौटना ना पड़े, ऐसी जगह की आप खोज कीजिए, राइट। और वो कैसे होगा, भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। अब भगवान की शरण अगर ग्रहण कर लो, भगवान खुद कह रहे हैं, राइट। क्योंकि वो क्या है, अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु के सूत्रपात है और वहीं से सबका विस्तार होता है। सो ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, यू शुड टेक अ शेल्टर ऑफ भगवान हिमसेल्फ, दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, राइट। सो यू अंडरस्टैंड दिस श्लोका। भगवान कह रहे हैं कि आपको डिटैचमेंट के शस्त्र से इस ट्री से अपने आप को अलग करना है, अपने डिजायर को कट करना है ताकि आप डिटैच हो जाओ, आपके डिजायर शांत हो जाए, राइट। दूसरा भगवान कह रहे हैं कि आपको ऐसी जगह की खोज करनी है जहां से वापस लौट के ना आना पड़े। और भगवान तीसरी चीज कह रहे हैं कि आप उस भगवान की शरण ग्रहण करिए, राइट। कि जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात अर्थात संचालन हो रहा है और दूसरा विस्तार भी हो रहा है। भगवान इज अ सूत्रपात अर्थात भगवान इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, एट द सेकेंड ही इज द वन हु इज एक्सपांडिंग एवरीथिंग। तो आप उस भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए। दिस इज व्हाट कृष्णा एक्सप्लेन इन टू दिस 3 and 4, दिस 3 बेसिक प्रिंसिपल। अब देखते हैं प्रभुपाद क्या समझाते हैं इसके अंदर। So it is now clearly stated that the real form of this banyan tree cannot be understood. आप उसको समझ नहीं सकते. Since the root is upward, the extension of the real tree is at the other end, right? When entangled with the material expansion of the tree, one cannot see how far the tree extended. आप देख नहीं सकते कितना बड़ा और जटिल है. Nor can one see the beginning of the tree. ना तो आप उसका beginning देख पाओगे. Yet one has to find out the cause. फिर भी आपको cause तो find करना है. क्या cause है? I am the son of my father. My father is the son of such and such person, etc., etc. By searching in this way,
आप कहाँ तक जाओगे? ब्रह्मलोक, ब्रह्मा तक जाओगे। मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ढूंढते 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 जाओ तो आप आपके दादा के दादा के दादा के दादा परदादा कौन मिलेंगे आपको? लॉर्ड ब्रह्मा। और फिर उसका भी अगर ओरिजिनल ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? यू विल रीच बैक टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। दैट इज द एंड ऑफ द रिसर्च वर्क। आपका रिसर्च वर्क खत्म हो गया कि आप किसकी संतान हो? भगवान की ही संतान हो, राइट? वन हैज टू सर्च आउट दैट ओरिजिन ऑफ दिस ट्री, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, थ्रू द एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु इज इन नॉलेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और ये आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू आर इन कॉन्टैक्ट, when you are in association with a devotee of the Lord, जो भगवान के बारे में आपको बताएगा या समझाएगा। then by understanding one, आप एक बार उसको समझ लोगे, आप धीरे धीरे डिटैचमेंट के प्रोसेस को फॉलो करोगे। क्योंकि देखिए, डिटैचमेंट का पहला एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल क्या है? एनलाइटमेंट। जैसे ही एनलाइटमेंट शुरू होगा वैसे ही डिटैचमेंट शुरू होगा। जब तक एनलाइटमेंट नहीं होगा तब तक आप डिटैच नहीं हो सकते। तब तक आप इन मिथ्या चीज़ों के अंदर उलझे रहोगे कि ये मेरा, मी माई एंड माई सेल्फ, राइट? मेरा है, मुझे ये चाहिए, मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, ये सब हम पकड़ के रखते हैं। लेकिन द मोमेंट आपको एनलाइटमेंट हुआ, एनलाइटमेंट इज नॉट ओनली दैट दिस रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दिस श्लोका। आप अगर इस श्लोक को पचा लेते हो सही मायने में, उसको अपनी दिनचर्या के अंदर ऐड करते हो, then it is the real enlightenment. One, what is that? Basically, you are practicing that knowledge. Knowing the knowledge versus practicing the knowledge is two different things. हमें सबको पता है, हम गीता बहुत सुनते हैं, हम भागवतम के बहुत ज़्यादा क्लास करते हैं, हम डिवोटी के एसोसिएशन में रहते हैं, लेकिन फिर भी वी डोंट अप्लाई दैट नॉलेज इन द लाइफ। जब भी सिचुएशन आती है, हम अपना अहम, अपना वर्चस्व, अपना पावर दिखाना चूकते नहीं हैं। हमारी जिह्वा पे आ जाता है क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमने उस नॉलेज, उस एसोसिएशन को पचाया नहीं है, राइट? सो जब तक हम उसे पचाएंगे नहीं, तब तक रियल सेंस में हमें एनलाइटमेंट हुआ नहीं है। हाँ, ये सब तिलक, कुर्ता, ये सब बाहरी भेस है। अंदर अगर मैंने उसे पचाया नहीं है तो बेसिकली वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा, राइट? एंड दैट इज द रीजन आई एम शोइंग ऑफ माई सेल्फ, राइट? सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि when you come under the association of the devotee, when you get really enlightenment, जब आप उस नॉलेज को अपनी दिनचर्या में लेके आओगे, प्रैक्टिस में लेके आओगे, then the real detachment is going to be start. आप सही में डिटैच होना शुरू हो जाओगे, right? The word asanga is very important in this connection because the attachment for the sense enjoyment and lording it over to the material nature is very strong. यही मैं बता रहा था। asanga is very important in this connection because attachment for sense enjoyment, हमारा attachment जो है enjoyment का, वो बहुत जटिल है। मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारे डिवोटीज को भी देखा है कि उनका अटैचमेंट छूटता नहीं है, दो दे आर डिवोटीज, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल। और दूसरा, लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर, उनको जो एक वर्चस्व की जो उनके अंदर एक ठसक रहती है, वो भी उनसे नहीं छूटती, चाहे नॉलेज कितना हो जाए। वो कहीं भी शो ऑफ करना कभी कभी छोड़ते नहीं है, कभी भी किसी के ऊपर लॉर्डिंग करना नहीं छोड़ते, बिकॉज वो जाता नहीं है। समझ रहे हो ना? तो देयरफॉर वन मस्ट लर्न द डिटैचमेंट बाय डिस्कसिंग ऑफ स्पिरिचुअल साइंस based on the authoritative scripture, and one must hear from the person who are actually in the knowledge. जो सच में नॉलेज के अंदर है, सच में नॉलेज को प्रैक्टिस कर रहा है, उसे सुनिए आप, राइट? एज अ रिजल्ट ऑफ सच डिस्कशन इन एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी, one come to the supreme person, one comes to the supreme personality of Godhead. ये सुन के, इनके साथ एसोसिएशन करके आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड तक पहुंच सकते हो। ये मुझे एक बहुत सही एक एग्जांपल याद आ रहा है ऑफ श्रीमद् भागवतम, आई थिंक 4th कैंटो और 6th कैंटो, आई डोंट रिमेम्बर, जहाँ पे महाराज कपिल अपनी माता को सांख्य योग समझा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली एक क्वेश्चन आता है माता का कि मुझे बताओ प्रभु कि यू नो मुझे सब पता है, what is the thing, what I should do, क्योंकि she is also very knowledgeable and she is the wife of महर्षि कर्दम। तो मुझे नॉलेज सब है, पर मेरे से सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिज़ायर है, या उससे जो मैं लोग उलझते हैं या उसके ऊपर चलते हैं, वो छूट नहीं पाता।
एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? तब कपिल ऋषि उन्हें बहुत सारी चीजें कहते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यू शुड come under the association of the saintly person. It's very important, क्योंकि उनके ऑरा, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी बातें, उनके ग्लैंस, ये आपके अंदर वो परिवर्तन एकदम सहजता से कर देते हैं. And with the help of their antidotes, their association, that is called the antidotes, you are able to cross that line which you are not able to right now with just a knowledge. यहाँ पे प्रभुपाद यही समझा रहा है कि with the association of a devotee or a saintly person, one come to the supreme personality of Godhead. Then the first thing one must do is surrender to him. The description of that place where having gone, one never returned to this false reflected tree. एक बार उसकी शरण आप चले गए, right? वही है कि उनकी शरण प्राप्त करने के बाद आप उस जगह जा सकते हो जहां से आपको इस फॉल्स रिफ्लेक्टेड ट्री के चंगुल में वापस से फंसना नहीं पड़ेगा. दैट इज व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन, राइट? सो अगेन 15.3 to 4 में भगवान हमें 3 चीजें समझाते हैं. पहली चीज कि ये वृक्ष बहुत जटिल है, उसको समझने की कोशिश मत करो. रेदर यू कम टू द डिटैचमेंट. आप डिटैचमेंट के शस्त्र को धारण करें और इस ट्री के आपके जो बंधन है उसको काटें, राइट? एंड द थर्ड थिंग कृष्णा सेज दैट आप ऐसी जगह जाने का प्रबंध करें या प्रयास करें या तैयारी करें कि जहां से आपको वापस नहीं आना पड़े. और भगवान कह रहे हैं उसका एक सही और सिंपल तरीका ये भी है कि आप उस भगवान की शरण ग्रहण करें कि जो इस सबके सूत्रपात अर्थात कंट्रोलर भी है और जहां से इन सब का विस्तार भी होता है, एक्सपांशन भी होता है. दैट इज व्हाट इज 13.3 and 4. नाउ सॉरी 15.3 and 4. नाउ वी आर ऑन टेक्स्ट नंबर 5. निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख सज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तथा. कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर श्री भगवान के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, अर्थात इटर्नल राज्य को. भगवान यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक समझा रहे हैं क्या कि जिसकी वजह से आप भगवान के लोक को प्राप्त कर सकते हो. देखो, हर एक घर के अलग अलग रूल्स होते हैं. अगर मैं आपके घर पे आऊं लेकिन आपके घर के रूल के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालता तो आप मुझे अपने घर में आश्रय नहीं दोगे. वैसे ही मेरे घर के कुछ रूल हैं, अगर आप उसमें अपने आप को नहीं डालते तो मैं आपको अपने घर में नहीं ठहराऊंगा. चाहे तो कुछ दिनों के लिए होटल में रुकवा दूंगा लेकिन घर में लेके नहीं आऊंगा. वैसे ही जो ये इटर्नल राज्य है, जो शाश्वत देश है, जो ऐसी जगह जहाँ पे वापस नहीं आना पड़ता, वो भगवत धाम है. और भगवत धाम में भी भगवान के कुछ रूल है क्योंकि वो उनका घर है, उनका राज्य है. तो हमें उस रूल से खुद को उसमें ढालना पड़ेगा. जब तक हम अपने को उस रूल में ढालोगे नहीं जो उस राज्य के रूल्स है, तब तक हम उस राज्य में जा नहीं सकते. तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो क्या क्या चीजें हैं कि झूठी प्रतिष्ठा, राइट, मोह तथा कुसंगति से मुक्ति. दीज आर द बेसिक थिंग, राइट. जो शाश्वत तत्व को समझते, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया. भौतिक काम को नष्ट करना, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित है, यही लोग भगवान के धाम जा सकते हैं. भगवान ने मोटा मोटा समझा दिया कि भैया झूठी प्रतिष्ठा से खुद को मुक्त करो, मोह और कुसंगति से मुक्त करो, राइट. अपने शाश्वत तत्व को समझो, अर्थात यू आर इटर्नल. आप एक आत्मा हो जो शाश्वत है, उस तत्व को अच्छे से समझ लो, राइट. जो भौतिक काम है उसको भी नष्ट करो और सुख और दुख के इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ. ना सुख में सुखी हो, ना दुख में दुखी हो. समझो कि दिस इज द स्टेज ऑफ द लाइफ और स्टेट ऑफ द लाइफ, राइट, बेस्ड ऑन माई करंट सिचुएशन और माई सेंस परसेप्शन. उसके हिसाब से मैं सुख और दुख का अनुभव कर रहा हूं. तो इस द्वंद्व से भी मुक्त हो जाओ और मोह रहित हो जाओ. बस इतना हो गया ना भाई, तुम मेरे घर में आ सकते हो. दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग.
प्रभुपाद यहाँ पे यही समझा रहे हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। शरणागति अर्थात क्या, जैसे हम पहले हंसुल में डिस्कस कर चुके हैं कि शरणागति का मतलब क्या हो, बताइए। आप कहते हैं कि चलो मैं भगवान आपकी शरण में हूँ, या मैं गुरु जी की शरण में हूँ, मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, मैं उनके आश्रय में हूँ। कुछ लोग भगवान का फीट का फोटो डालते हैं बार बार, मैं भगवान आपके लोटस फीट, आई एम अंडर शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर टेक्निकली, या सरेंडरनेस, बताइए। सरेंडर का मतलब, Leaving everything up to him, Prabhu. ओके, वन पॉइंट। And whatever he show how to live life as Bhagavad Gita and all this, we have to follow that. जो रीत उन्होंने दिखाई वैसे. Yes. So if I say that I am at your lotus feet, उसका मतलब ये है बेसिकली कि आप जो कह रहे हो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, राइट। एट योर इंस्ट्रक्शन, जैसे भगवान ने भागवत गीता में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर हम उस इंस्ट्रक्शन को पचाते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आई एम अंडर द शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राइट। अगर हम भगवत गीता का टीचिंग पढ़ लिए लेकिन हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसी अहंकारी रावण को फॉलो कर रहे हैं या हिरण्यकशिपु को फॉलो कर रहे हैं, तो हम भगवान के शेल्टर में नहीं है। चाहे हमारे माथे पे टीका हो या तिलक हो या सब कुछ हो, हम किसके शेल्टर में है या किसके सरेंडर है, वही रावण के या वही किसी कार्मिक इंसान के, राइट। तो भगवान की शेल्टर का जो सुंदर उदाहरण है शरणागति का, वो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वो क्या है, मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। ये अहंकार एक ऐसी चीज है ना कि इंसान सत्यवादी हो सकता है, लेकिन सत्यवादी है उस अहंकार से मुक्ति नहीं पा सकता। अहंकार बहुत ही सटल है, बहुत ही सटल, और ये लास्ट चीज है जो किसी भक्त के जीवन से जाती है। वो सत्यवादी हो सकता है, वो कुसंग से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो सकता है, राइट। वो भौतिक काम को नष्ट कर सकता है, वो मोह रहित हो सकता है, लेकिन वो भौतिक काम को नष्ट करने का, सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त होने का, मोह रहित होने का, कुसंग से मुक्त होने का, शाश्वत तत्व को समझने का जो अहंकार है, उससे मुक्त नहीं हो सकता। एंड you will see this in many of the devotees कि वो अहंकार जो है ना जाता नहीं है। शास्त्र उठा के देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि भगवान ने अपने भक्त के उस अहंकार को जो सबसे पावरफुल है उसको कैसे नाश किया। देवर्षि नारद की कथा आती है, पूरा रामचरित मानस का जो इनिशियल जितने चैप्टर्स हैं उसका जो प्राइमा फेज ही है, उसमें भगवान इसी को समझा, देवर्षि नारद का अहंकार कैसे नष्ट होता है। देयर आर सो मेनी इंसिडेंट, राइट। भगवान ने सत्यभामा का अहंकार कैसे नष्ट किया, भगवान ने गरुड़ का अहंकार कैसे नष्ट किया, भगवान ने सुदर्शन का अहंकार कैसे नष्ट किया। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, आप पूरी भागवत उठा के देख लीजिए, क्योंकि अहंकार जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट टू लेट गो है। हमारे अंदर भी बहुत है, हम कहते हैं हम भक्त हैं, लेकिन हमारे पास हम भक्त होने का अहंकार हमारे पास होता है, हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूशन का अहंकार होता है, हमारे पास हमारे नॉलेज का अहंकार होता है, बहुत सारा अहंकार हम पाले हुए हैं, हमारे पास हमारे पैसे का अहंकार होता है, इन्यूमरेबल अहंकार। हम कहने को भक्त हैं, लेकिन ये अहंकार रूपी जो शत्रु जो बहुत प्यारा है वो आपके अंदर बहुत प्रेम से बैठा हुआ है, चाहे वो डिवोटी भी हो। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा साधना और बहुत 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 ज़्यादा सत्संग की आवश्यकता होती है, कि जैसे ही आप अहंकार को आइडेंटिफाई करो, ट्राई टू वर्क ऑन दिस, कि भैया ये अहंकार का ही एक स्वरूप है, आई शुड लेट गो दिस वन, राइट। सो अहंकार जो है वो बहुत जटिल शत्रु है, और बहुत बार देखने को मिलता है, चाहे आप कितने बड़े भक्त बन जाओ, राइट। सो और उसके कारण हम बहुत बार बहुत सारे अपराध भी कर लेते हैं, किसी भक्त के चरणों में अपराध कर लेते हैं। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे शास्त्र में आपको, कि अहंकारवश किसी भक्त ने, जो बहुत बड़े भक्त हैं लेकिन उसके पास भक्ति का अहंकार है, या भगवान से क्या बोलते हैं, क्लोजनेस, भगवान से इंटीमेट होने का भी अहंकार है। एक बहुत सही एग्जाम्पल है नामदेव का, आई विल शेयर दिस वन। सो नामदेव, संत नामदेव
संत मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत सोपान देव, संत गोराई चाचा, इन सब की एक बार मीटिंग हो रही थी। और वहाँ पे संत मुक्ताबाई ने गोराई चाचा से कहा, क्योंकि वो संत बहुत एज में बड़े थे और ये सब बालक समान थे, और इस बालक होने के कारण भी सब स्वरूप सिद्ध थे, भगवान से नित्य अपनी बातें और वार्तालाप करते थे। तो मुक्ताबाई ने कहा कि गोराई चाचा, आप हमसे बड़े हो उम्र में और भक्ति में भी, आप एक बात बताइए कि हम में से कौन कच्चा भक्त है और कौन पक गया है। तो गोराई चाचा ने हंसते में ही कहा, बोले देखो, मैं किसी भी चीज़ की जो है ना कसौटी कैसे करता हूँ, इस लकड़ी के डंडे को मिट्टी के ऊपर मार, क्योंकि वो कुम्हार थे, अर्थात जो मटके बनाते हैं। तो बोले मटका पक्का है या कच्चा है, उसको मैं कैसे देखता हूँ, उसके ऊपर टकोर लगा के। तो बोले चाचा, एक काम करो ना, हमारे पे भी टकोर लगा और बताइए हम पक्के संत बने या पक्के भक्त बने कि नहीं। तो संत ज्ञानेश्वर के माथे पे किया, संत सोपान देव के माथे पे किया, संत निवृत्तिनाथ के माथे पे किया जो उनके बड़े भाई हैं, संत मुक्ताबाई के माथे पे टकोर की। और जब बारी आई संत नामदेव के माथे पे टकोर करने की, तो नामदेव वहाँ पे गुस्सा हो गए कि बोले ये क्या तरीका है भक्तों का एग्जाम लेने का, हम सब यहाँ पे स्वरूप सिद्ध भक्त बैठे हुए हैं, आप ऐसे कैसे एक मटके को जैसे तराशते हो वैसे हमें तराशते हो। ऐसे करके उठ गए, और जैसे ही उठे वहाँ पे गोराई चाचा ने कहा कि देखो मुक्ता बेटा, तुम सब तो पक गए हो, बस एक नामा ही अभी तक कच्चा रह गया है। और जब ये सुना नामदेव ने, तो नामदेव वहाँ से रुष्ट होके भागे कहाँ पे, विठोबा के पास। विठोबा के पास गए तो विठोबा के पास रोने लगे, तो विठोबा प्रकट हो गया कि भगवान से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी उनकी, तो उनको पता था कि मैं भक्त हूँ, भगवान से हर दिन बातें करता हूँ। तो विट्ठल देव प्रकट हो गए वहाँ पे और कहा कि नामा क्यों रो रहा है। तो कहा कि आज गोराई चाचा ने ऐसा ऐसा किया और मुझे बहुत गुस्सा है। तो भगवान ने कहा कि गलत क्या कहा उन्होंने, तुमने मुझे प्राप्त कर लिया लेकिन तूने अभी अहंकार को नहीं जीता है, और ये एक नेगेटिविटी है फ्रॉम अदर, क्या बोलते हैं, त्रुटि तेरे में। और उसको अगर तुझे सॉल्व करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक सच्चे गुरु, एक सच्चे संत के आश्रय में जाना पड़ेगा। मुझे प्राप्त करना आसान है, लेकिन उस भक्त की अवस्था को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हें मुझसे ऊपर उठना है, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द राइट गुरु एंड द राइट सेंट, जिसका एसोसिएशन तुम्हें शुद्ध बना देगा। तो बोले कहाँ पे मिलेगा, देन गो इन दिस डायरेक्शन एंड यू विल फाइंड योर गुरु। देन द कथा कंटिन्यूज, हाउ ही फाइंड हिज गुरु एंड एवरीथिंग। बट कहने का तात्पर्य ये है कि नामदेव भगवान के साथ हर दिन वार्ता करते थे, हर दिन भगवान से बातें करते थे, भगवान को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उस अहंकार को जीत नहीं पाए थे, जिसको जितवाने के लिए विठोबा ने नामदेव को गुरु की शरण प्राप्त करवाई, राइट। तो प्रथम योग्यता की आवश्यकता क्या है, मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। हमारे अंदर जो अहंकार रूपी शत्रु है उसके ऊपर काम करना, जो हमें हर एक चीज के ऊपर खुद को समझाता है कि वी आर सुपीरियर देन अदर्स, राइट। क्योंकि बुद्धिजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मान के गर्वित करता है, राइट। अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन हो जाता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं, उसके स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो आप अगर सही में डिसाइपल बने कि नहीं, सही में आप एक्स प्रभु या एक्स दासी या एक्स दास बने कि नहीं, वो तभी है, शरणागति तभी हुई जब आप इस शत्रु से जीत पाओगे। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे भक्त हो, चाहे डिवोटी हो, चाहे नॉन डिवोटी हो, ये सदैव सम्मान की आशा रखते हैं। उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अगर आप सम्मान की आशा रखते हो, कहते हो कि मेरा आदर इस प्रकार से ही होना चाहिए, मैं ये हूँ, मुझे ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, तो आप समझ सकते हो खुद को कि आप शरणागति से बहुत दूर हो अभी, राइट। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है। हमें लगता है कि हमारी संसार में ये पोजीशन है,
हम सो एंड सो है, हमारा स्टेटस ये है सोसाइटी में, हमारा वैल्यू ये है, हमारे पास इतना पैसा, इतना बैंक बैलेंस है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे हम डिवोटी हो, लेकिन ये डिवोटी को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई हैव सो मच ऑफ नॉलेज, दे शुड रिस्पेक्ट मी। ये अहंकार के अलग अलग प्रकार है, और जब तक ये रहेगा तब तक हम शरणागति से कोशों वंचित है। और फिर हम कह नहीं सकते कि भगवान हमें मिले या ना मिले, क्योंकि जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम भगवान की शरणागति से कोसों कोसों दूर है। राइट, सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। कृष्णा क्या कहते हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा, क्योंकि प्रतिष्ठा तो सिर्फ एक ही है जिसने संसार को बनाया, राइट। बाकी सबको तो खैरात में मिली हुई प्रतिष्ठा है या स्टेटस है, तो उसके लिए क्यों खुद को इतना इसको क्या कहते हैं, सम्मान के लिए खुद के लिए आशा रखना, राइट। सो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त होना, शाश्वत तत्व को समझना, भौतिक काम को नष्ट करना, सुख और दुख के द्वंद से मुक्त होना, राइट, और भगवान की शरण होना, राइट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है कहाँ पे, बैक टू गॉड हेड, गोलोक वृंदावन जाने के लिए। So this is what our chapter number 15, text number 5, we cover from 1 to 5. Is there any questions? Then we can take it. If we don't have any questions, then we'll go for chanting. Okay. Okay. So, Pragya Devi, you gonna chant? Yes. Okay. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। वी कैन नॉट हियर यू माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
So, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय माता जी। नाइस। हरे